So I welcome everyone to online career guidance seminar organized by Association of Muslim Professionals. The main aim of this session is to help students choose a field that is in tune with their skills and their job expectations. Thus, with the help of such career guidance seminar, most students end up choosing the right career and perform their level best, which ultimately helps them succeed. So we'll be starting this session with a short qiraat, and then I would request uh, Fuzail Bhai to give a short introduction of Association of Muslim Professionals. So we'll start with a short qiraat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Thank you so much. So I request now Fuzail Bhai to please give a brief introduction of AMP before we start the live session. Thank you. Yeah, very good afternoon to everybody. The screen share started. Let me quickly Yes. take you through a bit about the online career guidance seminars that we are currently holding. Welcome from the Association of Muslim Professionals, a non-profit registered organization. You just saw the video of the Association of Muslim Professionals. To give you a very short brief about AMP, we are a registered non-profit in India, USA, UK, and Australia. We've completed approximately 12 years, running on 13, serving a community in the field of specifically education, employment, and empowerment only. Uh, AMP has a vision to positively impact the lives of 10 million people. This we intend to do by the year 2030, and we are well on track. Our mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of our society and in general every nation that we have our operations in. And we also want to build a model community where there's advancement in education. It's going to be socially progressive. The community has to be culturally vibrant, influential politically, and also economically dynamic. Few achievements that we would like to share with you at this point of time regarding AMP is we have five subtitles that we want to share the achievements on. We have the school development programs. These are basically development programs where we engage with the lecturers and students and teachers trainings. So we've done close to 2,750 SDLs. We have 800 plus schools that we are listed with across, and we've benefited through our trainings more than 2,75,000 students till dates directly. And 100 plus teachers we've done training and parenting workshops for. Then we have the employment assistance cell, where we hold a lot of fairs and drives and trainings related to employment assistance for our members and the underprivileged community. Most of our members help us in setting up these also. So we have had more than 350 plus there in terms of fairs and job drives that we've conducted across various cities that we've held these operations in. 20,000 plus candidates that we've got jobs for, and we've got 200 plus employability trainings that we've conducted, and we've benefited more than 15,000 students who are pursuing their degree to get a job after their degree. And then we move to the scholarships and self-employment. We've had 800 plus higher education scholarships that we've facilitated. We also help a lot of orphans, who want to get educated. So we've helped more than 750 plus orphans in education specifically. And we've also been transforming families through education by offering and through self-employment assistance as well. Then we have a centralized Association of Muslim Professional Resource Center, where we have 600 plus career counselors who work with us on a regular basis. We have 2,000 plus students who have directly been counseled for their careers.
And for the employabilities, we have more than 50 plus documents on career guidance, and we are continuously growing our knowledge bank on that. We have 1000 plus career chart distribution, which we've set up at different schools, because we believe that the earlier students realize what they want to do in life, the better it is for them. So the career charts help them really early on. We have awards and partnerships that we've done, got from 280 plus renowned educationalists, and partner NGOs that we've partnered with. So these are a few of achievements. Of course, there are many more. But just to cut everything short, we have an on-ground presence of 100 plus active chapters across various cities. We have spread across 25 states across the world, across 16 countries, and we have more than 6,000 plus active members listed with the Association of Muslim Professionals. And these are people who are full-time members of the AMP. We have an online presence of 1,25,000 plus members and professionals who are connected through us through online presence. To know more about AMP, we would request you to please join us at AMP and help help us in our initiatives, our non-profit initiatives. You can know more about us from ampindia.org, and you can join us by visiting the link that you see on the screen. And thank you for that. And I would now like to introduce our speaker for the day also. So our speaker for the day is Ms. Smriti Dhingra. She is she's a Commonwealth Scholar 2019-20. She's Women Deliver Young Leader for 2018. She's done an MSc in Urban Development Planning at the Bartlett Development Planning Unit, University College London, United Kingdom. MA Social Work in Disability Studies and Action at the Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, India. And thank you for joining us this morning, afternoon, today, Ms. Smriti, and over to you. Thank you so much for having me over for this session and making me part of your organization. Today, we will be discussing about careers in social sciences and humanities and what path we can take from giving exams of 12th standard and after that. So I'll be sharing my screen with you because I have a short presentation prepared. And this session will be in Hindi-English mix. So I hope that is okay. Just a minute. Yeah. I hope my presentation is visible. So It's visible. पहले तो हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेस फील्ड है क्या. बेसिकली ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस दो बहुत बड़े डिसिप्लिन्स हैं और जिसमें हिस्ट्री, आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, सोशल वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. Recently, when the government has started collaborating with civil society organizations, जिनको हम NGOs भी बोलते हैं, इन फील्ड में और इन सब्जेक्ट्स का स्कोप और ज़्यादा बढ़ गया है. ये तो रही ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, टोटल दो बड़े डिसिप्लिन्स का मैंने जो बताया. सोशल साइंसेस जैसे डिसिप्लिन हमारे एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, पॉलिटिक्स, सोशल वर्क या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज जैसे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करते हैं और इसके लिए ये दो फील्ड्स साथ में बोला जाता है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, बट बहुत डिफरेंटली इनके सब्जेक्ट्स हैं और डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं और इनकी डिफरेंट पढ़ाई होती है. जनरली हमारे उस सोसाइटी में मिसकंसेप्शन है कि अगर हम 10th बोर्ड्स के बाद आर्ट्स ले लेंगे या कॉमर्स ले लेंगे तो जनरली वो स्टूडेंट वीक है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो इसके लिए वो सब्जेक्ट्स उस स्टूडेंट ने लिए हैं. बट कुछ स्टूडेंट्स इसको अपने इंटरेस्ट
इंटरेस्ट की वजह से भी लेते हैं, और इसकी वजह से सो कुछ स्टूडेंट्स इसको अपने इंटरेस्ट की वजह से भी लेते हैं. However, the truth is that there are many career opportunities which opens up if one takes up these two subjects or these two disciplines, and वो सब possibilities हम इस presentation में discuss करेंगे. First of all, 12th बोर्ड के एग्जाम के बाद नो मैटर आपने कौन सा स्ट्रीम लिया है, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, आप इस डिसिप्लिन में, सोशल साइंस वाली डिसिप्लिन में या ह्यूमैनिटीज डिसिप्लिन में इजीली एंटर कर सकते हैं. और फॉर एग्जांपल इस डिसिप्लिन में अगर आप एंटर करेंगे तो ये फॉलोइंग कोर्सेज यू कैन चूज एंड लर्न, जैसे इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस. सो आजकल लैंग्वेजेस का स्कोप काफी बढ़ चुका है. तो इंग्लिश एक लैंग्वेज तो है ही, बट काफी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी आजकल पढ़ाई जा रही हैं, जैसे चाइनीज हो गए, स्पेनिश हो गया, जिनका इस सेक्टर में काफी स्कोप है. देन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, लाइब्रेरी साइंसेस, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज आप अगर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में जाना चाहेंगे तो ये सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल रहेंगे. जो मैंने पढ़ाई करी थी, मैं अपना एक एग्जांपल दूंगी. मैंने 12th तक साइंस लिया था विद इकोनॉमिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट गुड मार्क्स, एंड मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है इंजीनियरिंग में जाने के लिए. सो देन आई वेंट टूवर्ड्स होम साइंस. अब होम साइंस में जनरली बोला जाता है कि होम साइंस इज अ कोर्स विच इज मोस्टली खाना पकाना है या स्टिचिंग सिखाएंगे, बट होम साइंस इज बियॉन्ड दैट. होम साइंस में 5 स्ट्रीम्स निकलती हैं. पहले तो है न्यूट्रिशन, जिसको आप जनरली, इस फील्ड को जनरली आप डाइटिशियन से जोड़ सकते हैं, या आप अगर आप कोई पैकेट्स, आजकल हम सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो आप जैसे पैकेट्स पे देखेंगे तो उसमें कैलोरी काउंट्स लिखा होता है, या बाकी कितना some health products भी होते हैं. So all these things और ये सब डिसाइड करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट. सो इस फील्ड से, होम साइंस से एक स्ट्रीम न्यूट्रिशनिस्ट की निकलती है, जहाँ पे आपका प्लेसमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, जहाँ पे हॉस्पिटल्स में हर 10 पेशेंट्स पे एक न्यूट्रिशनिस्ट असाइंड होती हैं और वो उनका टेक केयर करती हैं. या आप ऐसे बड़ी नेस्ले कंपनी हो गए या अदर कंपनीज हो गए जो फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनमें भी आप इस चीज को इस होम साइंस जैसी फील्ड से पढ़ के ज्वाइन कर सकते हैं. होम साइंस में सेकंड फील्ड है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, जो कि मैंने चूज करा. उसमें मैंने एक बहुत स्मॉल स्ट्रीम चूज किया, डिसेबिलिटी स्टडीज, क्योंकि मैंने उसमें डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ा और मुझे इंटरेस्ट आया. तो देन वहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत डिसेबिलिटी स्टडीज में करी. देन थर्ड स्ट्रीम निकलता है फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेज, जहाँ पे आप ये डिजाइनर्स की बात करते हैं, अपैरल डिजाइनर्स की, जो कपड़े डिजाइन करते हैं या नए ट्रेंड्स को लाते हैं मार्केट में, क्लोथिंग ट्रेंड्स को. तो उस स्ट्रीम से वो फील्ड निकलती है. और फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशंस, जहाँ पे आप मास कम्युनिकेशन जैसी फील्ड में जा सकते हैं. और फिफ्थ हमारा है रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ पे आप मैनेजमेंट जैसी फील्ड को चूज कर सकते हैं. तो ये थी होम साइंस की 5 फील्ड्स जो मैंने अंडरस्टैंड करी और मैंने उसमें से एक चूज करी. बाकी अगर आप सोशल साइंसेस पे जाना चाहेंगे तो ये काफी सारे कोर्स ऑप्शंस हैं हमारे पास. सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में नो मैटर अगर आपने अंडर ग्रेजुएट में कोई लैंग्वेज का कोर्स किया है, चाहे पॉलिटिकल साइंस का कोर्स किया है, फिर भी आप अपनी स्ट्रीम को स्विच कर सकते हैं और आप उसमें सिमिलरली साइकोलॉजी जैसे, सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन जैसे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज को चूज कर सकते हैं. MBA भी आप चूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप मार्केटिंग में MBA कर सकते हैं, या आप फाइनेंस में MBA कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे इन ये कोर्सेज करने से हमारे पास क्या स्किल्स एक्वायर्ड होती हैं. बेसिकली आप कोई भी जॉब में जाते हैं तो हमें ये स्किल्स डेफिनेटली जरूरी पड़ती हैं.
जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, रिसर्च स्किल्स हो गए, प्रॉब्लम स्किल्स हो गए, प्रेजेंटेशंस, एनालिटिकल। तो अगर आप कोई भी कोर्सेज चूज करेंगे जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस से रिलेटेड है, फिर भी आप ये स्किल्स डेवलप करेंगे। आप इंजीनियरिंग जैसे फील्ड भी जाएंगे तो भी आपको ये स्किल्स आप लर्न करेंगे, बट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में इन स्किल्स को लर्न करने का ज्यादा एक्सपोजर रहता है। और जनरली वर्क एनवायरनमेंट में आजकल के फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड में ये सारी स्किल्स बहुत जरूरी हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर हम ग्रेजुएशन कोर्सेज, जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी बोलते हैं, अगर उनमें हम जाना चाहेंगे तो आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में मिनिमम 50 to 60% मार्क्स चाहिए कोई भी एक रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। और उसके बाद आप जब कॉलेजेस में कोई भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहेंगे तो उनकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है या उनके सेपरेट एग्जाम होते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपके अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के मार्क्स कंसिडर होते हैं, और साथ ही साथ में आपके एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स के मार्क्स भी कंसिडर होते हैं। It may be noted that the criteria which is mentioned for undergraduate level and postgraduate level वो बहुत वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टू कॉलेजेस में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की हम बात करें तो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हमारे कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेती है। जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेडी अर्विन कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मेरे 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स मैटर किए थे। एंड बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम्स भी लेती हैं। तो बेसिकली फिर जो यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम लेती हैं उनके लिए आपके 12th मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं, और फिर जो आप एंट्रेंस एग्जाम्स में मार्क्स लाते हैं फिर वो कंसिडर किए जाते हैं। इंडिया में कुछ हमारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज आप काउंट कर सकते हैं, जैसे इग्नू हो गया, JNU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, मुंबई यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया, जादवपुर यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑल दीज यूनिवर्सिटीज आर क्वाइट रिनाउंड एंड कुछ काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जैसे आप केरला यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। सो आप ऐसे यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन इजीली ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके 12th में क्या मार्क्स आए हैं या आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल में क्या मार्क्स आए हैं। कुछ बेस्ट कॉलेजेस के अगर मैं नाम आपको बताऊं तो सेंट स्टीवन कॉलेज हो गया जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, या लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, लॉयला कॉलेज हो गया चेन्नई में, या जेवियर्स कॉलेज हो गया मुंबई में, फर्गसन कॉलेज हो गया। सो अगेन इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट एडमिशन क्राइटेरिया है जो आपको उनकी वेबसाइट से इजीली पता चल जाएगा। ये एक ओवरव्यू है जो हम ये टेबल बेसिकली बताता है कि कौन से कॉलेजेस में एग्जाम्स एप्लीकेशन पीरियड कब निकलता है या एग्जाम डेट्स कब होती हैं और उनका वेबसाइट। सो यू कैन इजीली हैव एक्सेस टू दिस स्लाइड सेट जिस पे आपको ये पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस टेस्ट हमारा मार्च अप्रैल में होता है, और एप्लीकेशन पीरियड मार्च अप्रैल में है, और उनका एग्जाम डेट मई लास्ट वीक है। सो ऑल्सो समटाइम्स ये चेंज और एग्जाम डेट्स चेंज होती हैं, बट जनरली आपका एप्लीकेशन पीरियड फ्रॉम अक्टूबर नवंबर प्रीवियस ईयर टू मई जून तक रहता है, बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल टिस का इन माई टाइम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज टाटा वहाँ पे एप्लीकेशन पीरियड उनका अक्टूबर नवंबर था, एंड उसके बाद हमारा एग्जाम नेक्स्ट ईयर जनवरी में हुआ, एंड उसके बाद हमारे इंटरव्यूज पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के इंटरव्यूज मार्च अप्रैल में हुए, और हमारा नया सेशन जून में शुरू हुआ। सो जनरली अक्टूबर नवंबर से अगर आप थोड़ा यूनिवर्सिटीज पे अगर आप ध्यान देंगे,
और आपको कौन सा यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो देन यू कैन इजीली फिगर आउट कि उनका एडमिशन डेट्स कब है या एप्लीकेशन डेट्स कब है और एग्जामिनेशन डेट्स कब है. हाँ, सो दिस इज द स्लाइड वेयर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की, जैसे 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अगेन एप्लीकेशन पीरियड मार्च अप्रैल होता है और एग्जाम डेट मई होती है. सो वो सब आपको उनकी वेबसाइट से बहुत इजीली पता लगेगा rather than depending upon one specific information, क्योंकि वो information change होती रहती है. रही बात फीस एंड स्कॉलरशिप्स की, so fees and scholarships again vary करते हैं depending upon university and colleges. Generally fees 10,000 to 1 lakh per annum रहती है. For example, मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री 30,000 per annum, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस 30,000 per annum per term थी, एंड मेरी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की कंप्लीट डिग्री 80,000 फीस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर, 80,000 रुपीज में कंप्लीट हुआ था. रही बात स्कॉलरशिप की, तो कॉलेज स्कॉलरशिप्स जब आप एडमिशन ले लेंगे कॉलेजेस में तो आपका ओरिएंटेशन होता है, देन दे गिव यू क्लियर आइडिया अबाउट कि उनके कॉलेजेस में कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं एंड कौन सी स्टेट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है या कोई माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो बच्चा अप्लाई कर सकता है. स्कॉलरशिप्स के एग्जाम्पल्स हैं इंडसइंड फाउंडेशन स्कॉलरशिप्स, और कुछ स्कॉलरशिप्स स्टेट्स और कॉलेज स्कॉलरशिप्स तो रहती हैं. फाउंडेशंस भी, एनजीओज भी आपको, या CSR प्रोजेक्ट्स भी आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं. तो जो फाउंडेशंस और CSR की स्कॉलरशिप्स हैं वो जनरली आपको कॉलेजेस नहीं बताएंगे, बट you can easily research on that and you can get an idea कि कौन सा, for example टाटा ट्रस्ट कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, तो बट वो टाटा ट्रस्ट स्कॉलरशिप आपको कॉलेज नहीं बताएगा, बट वो आपको जनरली रिसर्च करने पे पता चल जाएगा. सो वो कुछ बड़ी बड़ी फाउंडेशन जैसे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गए या बाकी रिलायंस फाउंडेशन हो गए, तो ये सब फाउंडेशंस भी कुछ मिनिमम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं. ये मैंने आपको जैसे बताया कि टाटा ट्रस्ट हो गया जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है. प्रीवियस स्लाइड में धीरूभाई अंबानी ये स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं. तो ये प्राइवेट स्कॉलरशिप्स भी हमको थोड़ा रिसर्च करने पे मिल सकती हैं इजीली. रही बात ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर हम कंफ्यूज्ड हैं कि हम पॉलिटिकल साइंस, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हमें क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. तो BA पॉलिटिकल साइंस जो 3 इयर्स का कोर्स है उसमें आपको मेजर सब्जेक्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जाता है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता है, और इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है. एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, हमें लगता है कि सोशियोलॉजी हमारा एक इंटरेस्ट एरिया है. अगर हमें लगता है कि सोशियोलॉजी एक इंटरेस्ट एरिया है तो हमें उनके सब्जेक्ट्स भी देखने ज़रूरी हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, क्या हमें इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या हम इनको पढ़ पाएंगे. तो हम कोर्सेज के साथ साथ उन कोर्सेज में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स को भी अगर हम ध्यान दें तो हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है. After completion of graduation or post-graduation, these are the following careers which one can easily choose. जैसे सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं जहाँ पे आप IAS, IPS, RS की प्रिपरेशन कर सकते हैं. टीचिंग में भी जा सकते हैं, B.Ed, M.Ed, आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रोफेसर. कम्युनिकेशंस अगर आप कोर्स लेते हैं तो उसमें आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, पब्लिक रिलेशंस में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में, डिज़ाइनिंग में. सोशल वर्क में लेते हैं तो आप NGOs में जा सकते हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, CSRs में जा सकते हैं, फेलोशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, या आप इंडिपेंडेंट या आप किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं.
These are the few careers which you can choose, like teacher, or you can pursue your higher education in PhD. आप journalist में कर सकते हैं, journalism में कर सकते हैं, counseling जैसे आप अपना career को, counseling को आप अपना career बना सकते हैं. अब रही बात हमें social science subject क्यों choose करना चाहिए या हम social science subject क्यों choose करें. बेसिकली सोशल साइंस सब्जेक्ट, मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सोशल साइंस सब्जेक्ट ने मुझे वो नॉलेज दी है जो शायद मुझे कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई गई है, या कभी मैंने वो कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेजेस मैंने स्कूल में मिस करी हैं, जो कि मैंने सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ के मैंने चूज किया. इट्स अ वेरी डिफरेंट फील्ड एंड इट्स अ वेरी होलिस्टिक फील्ड, जहाँ पे आपको नॉट ओनली आउटसाइड वर्ल्ड की जानकारी होगी, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, या बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट ऑल्सो आपको you will be able to kind of connect with yourself as well, because वो आपको एक रिफ्लेक्टिव पाथ पे ले जाएगा, जो कभी कभार टेक्निकल फील्ड्स जैसे इंजीनियरिंग फील्ड्स मिस कर जाती हैं. We also learn about values of different cultures. हम हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी नई चीजें जान सकते हैं, and we can also learn from that. So it gives you knowledge about different cultures and what is going around the world, and then it helps you to develop some skills which you may not learn otherwise as well. जैसे मैंने बीच में बात करी मेरी ह्यूमैनिटीज़ की जर्नी क्या रही है. मैंने आपको बताया मैंने 12th में साइंस पढ़ा था, बट मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में नहीं था. सो देन आई वेंट टूवर्ड्स परसुइंग होम साइंस ऑनर्स फ्रॉम लेडी अर्विन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मुझे 5 डिफरेंट फील्ड्स का एक्सपोजर मिला, एंड इट वाज इन माय हैंड मुझे कौन सा फील्ड चूज करना था. एंड देन आई चोज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, जो कि मुझे एक डिसेबिलिटी फील्ड, मैंने उसमें से एक स्पेसिफिक डिसेबिलिटी फील्ड चूज किया. एंड उसके बाद मैंने अपना पहला पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशल वर्क इन डिसेबिलिटी स्टडीज एंड एक्शन, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में था. उसके बाद मैंने 5 साल काम किया, एज अ रिसर्चर काम किया, और मैंने कम्युनिटी के साथ काम किया, और मैंने काफ़ी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट किया. उसके बाद अभी मैं अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग पढ़ाई कर रही हूँ लंदन में. बेसिकली मैंने अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग, जनरली हमारे इंडिया में जनरली ये फील्ड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बट यहाँ पे ये प्लानिंग फील्ड को एक सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज कोर्स कंसिडर किया जाता है, क्योंकि बोला जाता है कि प्लानिंग करने के लिए आपको लोगों के साथ मिलके प्लानिंग करनी है, और या पॉपुलेशन के साथ, सिटीजन्स के साथ मिलके प्लानिंग करनी है. सो देन यहाँ पे उस चीज को लेके ज्यादा फोकस है. सो देन द प्लानिंग फील्ड हैज कम अंडर सोशल साइंसेज रादर देन बिकमिंग अ टेक्निकल कोर्स. बाकी मैंने ओवर द टाइम बिंग मैंने कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप लिया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पढ़ रही हूँ, और विमेन डिलीवर यंग लीडर स्कॉलरशिप या फेलोशिप की वजह से मैंने जेंडर सेंसिटाइजेशन पे काम किया. थैंक यू सो मच. आई होप मेरा ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो. अगर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है. थैंक यू. Thank you so much, Smriti ma'am. Fuzail bhai, who's taking the Q&A? There are a few questions which have been raised in Q&A session. Yeah, Fahima ma'am and me will handle this. Okay, thank you. All right. So thank you so much, Miss Smriti, आपके presentation के लिए. काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था, वेरी डिटेल्ड, और आपने जो किया है वो भी आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया सबको, और बहुत सीखने के लिए मिला जो कुछ भी आपने बताया है प्रेजेंटेशन में. और
आई होप कि सबको बेनिफिट मिला है ये प्रेजेंटेशन से, और जो मिस स्मृति धिंगरा ने अभी हमारे साथ शेयर किया है। अभी स्मृति जी, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पार्टिसिपेंट से, तो वन बाय वन मैं आपको पूछता जाऊंगा। बिटवीन मी एंड फाहिमा मैम वी विल बी आस्किंग दोस क्वेश्चंस टू यू। तो आप इफ यू कैन आंसर दोस क्वेश्चंस फॉर द बेनिफिट ऑफ हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं, जो सुन रहे हैं आपका प्रेजेंटेशन। सो वी विल स्पेंड अबाउट 10 से 15 मिनट उसके ऊपर हम लोग अभी स्पेंड करेंगे। तो फर्स्ट है कि क्वेश्चन फ्रॉम मनवीत शेट्टी पूछते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी का माना क्या है, क्या होता है एंथ्रोपोलॉजी में? एंथ्रोपोलॉजी को हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो इट इज मोस्टली अबाउट स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड कल्चर, जो हमारा पहले एग्जिस्ट करता था और क्या क्या हमारे कल्चर और बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड जहाँ पे आप कल्चर, जिसको आप कल्चर स्टडीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, या पुराने सोसाइटीज के, या फॉर एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात आप पढ़ना चाहें तो वो भी एक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। It's not really about studying history, but it is about studying culture of like previous civilizations as well as like current civilizations as well. जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मिस्टर फारूक सिद्दीकी ने पूछा है कि विच इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू परस्यू डिस्टेंस लर्निंग और अंडरग्रेजुएट कोर्सेज फॉर जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क? जो जर्नलिज्म के लिए अगर आप डिस्टेंस लर्निंग की बात करना चाहें तो इग्नू इज वन ऑफ द, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी अगर आपको कंप्लीटली डिस्टेंस उसमें करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काफी डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको अगर आप वर्किंग हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इवनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करती है। रही बात जर्नलिज्म पढ़ने की, अगर आप डिस्टेंस लर्निंग से नहीं करना चाहते हैं, क्लासरूम सेटिंग में जाना चाहते हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी कॉलेजेस गुड अच्छे जर्नलिज्म के कोर्सेज पढ़ाते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी में काफी अच्छे जर्नलिज्म के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। और सोशल वर्क करने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क and Tata Institute of Social Sciences, Ambedkar University, all these universities are quite renowned and good universities. और कभी कभार इन यूनिवर्सिटीज में आपको डिस्टेंट कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो वो आपको स्पेसिफिकली उनकी वेबसाइट पे जाके पता लगेगा। और कब, क्योंकि टाइम शॉर्ट टर्म डिस्टेंट कोर्सेज भी रन, which depends upon their budget and availability and bandwidth of the professors. But अगर आप इन जनरल बात करना चाहेंगे, कोई यूनिवर्सिटी हमें डिस्टेंट कोर्सेज प्रोवाइड करती है, विच इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी डेफिनेटली प्रोवाइड करती है डिफरेंट कोर्सेज। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरभ सिंह जी पूछते हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से विच सब्जेक्ट्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन एंट्रेंस एग्जाम इन सोशल साइंसेस? ये 12th स्टैंडर्ड के बाद की बात हो रही है। एंट्रेंस एग्जाम, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं व्हेन यू आर डूइंग योर डिग्री। ओके, सो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में बात करें तो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे एक पैराग्राफ दिया होता है और आपको उसमें से आंसर्स देने होते हैं या कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स देने होते हैं, बट दे आर क्वाइट सिंपल। अगर आपको इन सब की प्रिपरेशन करनी है तो आप अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे इनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मार्केट्स में काफी बुक्स आती हैं कैट प्रिपरेशन की या मैथ प्रिपरेशन की, लॉजिक रीजनिंग है, आप उन बुक्स में से इजीली पढ़ सकते हैं। बाकी जनरल नॉलेजेस की भी आपको क्वाइट अच्छी बुक मिल जाएंगी। अगर आपको पुराने 10 साल की जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए,
तो वहाँ वो भी आपको बुक्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। जनरली एंट्रेंस एग्जाम का जो score है वो लॉजिक रीजनिंग रहता है, इंग्लिश इंग्लिश फ्रेज, इंग्लिश पैराग्राफ्स का रहता है, और जनरल नॉलेज, और आप कुछ आपके सब्जेक्ट से related भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी एंड आप कौन से सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सद्दाक हसन, पूछते हैं कि कैन अ स्टूडेंट विद ग्रेजुएशन इन साइंस ऑप्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन सम सोशल साइंस सब्जेक्ट, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली। सी सोशल साइंस की एक ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है कि आप नो मैटर आप साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप इजिली इसमें स्विच कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका इंटरेस्ट है, या प्रोवाइडेड आप उसको अपने आप उस स्ट्रीम को डेडिकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब सोशल वर्क किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, मेरे बैचमेट्स काफी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आए थे, सो इजीली उन्होंने एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम दिया एडमिशन के लिए, और उनका हो गया। कुछ लोग अगर काफी श्योरिटी नहीं होती है कि हमें सोशल साइंस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है, तो आजकल एक एक साल की अवेलेबल हो गई हैं, जैसे टीच फॉर फेलोशिप्स हो गई, या गांधी फेलोशिप हो गई, जो आपको सोशल साइंसेज वर्क का एक साल का एक्सपीरियंस देती हैं, जहाँ पे आपको वो एक सेटिंग, एक गांव में ले जाके वहाँ पे आपको मतलब उस गांव में डेवलपमेंट क्या हो रहा है, या आपको गवर्नमेंट सिस्टम्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग देने के लिए वो एक एक साल की फेलोशिप्स भी आप इजीली कर सकते हैं। और इन फेलोशिप्स में आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा एंड आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो ये फेलोशिप्स के थ्रू भी आप अपना करियर सोशल साइंसेज है, और शायद इन फेलोशिप्स के बाद अगर आपको और आगे इच्छा है पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप कोई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू मैम। और we'll answer that question. Which is the best university in Mumbai? बेस्ट यूनिवर्सिटी इन मुंबई, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी ही बोलूंगी। ऑब्वियसली मुंबई यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कॉलेजेस हैं। वन ऑफ द गुड कॉलेजेस व्हिच आई हैव हर्ड ऑफ इज जेवियर्स कॉलेज। क्योंकि मैं मुंबई से नहीं रहने वाली हूँ तो मुझे ये 2-4 कॉलेजेस का पता है, बट आई एम श्योर देयर आर मेनी अदर गुड कॉलेजेस, and Tata Institute of Social Sciences is again one of the best college for post-graduation courses. Thank you ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन साची करकेरा पूछते हैं कि जर्नलिज्म में लॉन्ग टर्म करियर कैसा बनाए? See, journalism is now has become a very big field, जहाँ पे आपका सोशल मीडिया काफी यूज हो रहा है, हर दिन आपके न्यू प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं, एंड सो जर्नलिज्म का मीनिंग ही चेंज हो चुका है। जर्नलिज्म में फिर काफी स्ट्रीम्स निकलने लगे हैं। आपको अगर टेलीविजन इंडस्ट्री में जाना है जहाँ पे आपको न्यूज एंकर बनना है, दैट इज अ डिफरेंट फील्ड। अगर आपको राइटिंग में जाना है जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर्स के लिए लिखना है, दैट इज अगर आपको डिजिटल मीडिया के लिए लिखना है, जो कि डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं, द वायर हो गया, स्क्रोल हो गया, क्विंट हो गया, ये बहुत ही डिफरेंट है। तो इन सब आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं जर्नलिज्म कोर्स करने के बाद, या एडवर्टाइजिंग में भी जा सकते हैं। जर्नलिज्म एक बहुत रिस्ट्रिक्टिव फील्ड नहीं रहा है जहाँ पे या तो आप कैमरा या आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, अपना खुद का भी राइट पर्सनल ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पर्सनल ब्लॉगिंग शुरू करें, आपका कोई इंटरेस्ट एरिया है, एंड देन उसके बाद आप अपना कोई स्ट्रीम एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको अगर फैशन ब्लॉगिंग पे लिखना है, या आपको कि न्यूज पे लिखना है, या आपको इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करना है, सो ऑल दीज आर वेरी डिफरेंट व्हिच कम्स आउट फ्रॉम अ जर्नलिज्म कोर्स। थैंक यू मैम। होम साइंस के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? होम साइंस के सब्जेक्ट्स मैंने जैसे पहले भी बताया, 5 स्ट्रीम्स निकलती हैं।
एक तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन, जहाँ पे आपको जिसको हम फूड साइंसेस भी, इस फूड साइंसेस से आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में जॉब सकते हैं, या आप हॉस्पिटल जॉब ले सकते हैं, या आप खुद का डाइटिशियन का क्लिनिक खोल सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द सब्जेक्ट. सेकेंड सब्जेक्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज, जिसकी वजह से जिससे आप सोशल साइंसेज में, सोशल वर्क में भी जा सकते हैं. आप बीएड भी कर सकते हैं, या आप स्कूल में टीचर भी बन सकते हैं ये कोर्स करने के बाद. फिर हो गया हमारा कम्युनिकेशन, जिस डेवलपमेंट एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, जो एक जर्नलिज्म की तरह ही है, बट ये और रिसर्च, ग्राउंड पे रिसर्च करता है. फॉर एग्जाम्पल गांव की स्टोरीज निकालता है और वहां से स्टोरीज लाके पब्लिश करता है. तो इट इज मोर ऑफ अ जो बेसिकली गांव में जब नहीं पहुंचता है, या सिर्फ रेडियो पहुंचता है, तो इस फील्ड से आप रेडियो की फील्ड में भी जा सकते हैं, या आप अपना करियर जर्नलिज्म की तरफ भी एक्सपैंड कर सकते हैं. फिर हो गया हमारा फैब्रिक एंड अपैरल साइंसेज, जिसकी वजह से आप डिजाइनिंग में जा सकते हैं, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप जाना चाहें. इसके बाद आप निफ्ट के एग्जाम्स दे सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है टेक्सटाइल डिजाइन करने का या डिजाइनिंग पढ़ने का. और फिर है एक कोर्स है, एक सब्जेक्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आप मैनेजमेंट एमबीए जैसी फील्ड में. अदरवाइज सब्जेक्ट्स पढ़ के आप होम साइंस प्रोफेसर भी बन सकते हैं. दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स. अदरवाइज आपको हमारे साइड सब्जेक्ट्स होते हैं, वो zoology भी पढ़ाया जाता है, और अदर सब्जेक्ट फिजियोलॉजी भी हमें ये भी साइड सब्जेक्ट्स हमने पढ़े थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेहान मंसूरी. प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम को क्या करना चाहिए? प्रोफेसर करने के लिए आपको नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा. आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने कोर्स किया है उसके बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, अगर सोशल वर्क का कोर्स किया था, तो मुझे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सोशल वर्क क्लियर करना पड़ेगा. अगर आपने कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया है, तो आप नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मास कॉम का करना पड़ेगा, और उसमें आप जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपको पीएचडी करना है. जेआरएफ से बेसिकली यही है कि 3 साल के लिए अमाउंट मिलेगा. अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी बेसिकली. जी. Is it possible to become nutritionist after completing undergraduation in BA? If yes, then please could you recommend the process and what exam? Okay. सिर्फ अगर आप मुझे ज्यादा जो मेरे अंडरस्टैंडिंग, अगर आप ये करेंगे तो आई एम नॉट श्योर आपको न्यूट्रिशनिस्ट बन पाएंगे. बट आई एम श्योर दैट मास्टर्स लेवल पे भी फूड साइंसेस के कोर्स होते हैं. बट अगर आप वो मास्टर्स लेवल पे फूड साइंसेस के कोर्स करना चाहेंगे, तो अगर अगेन आपको वो एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा. और वो एंट्रेंस क्लियर करने के लिए अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, सो देन यू कैन इजीली क्लियर इट. बट अदरवाइज जो मैंने पाथ देखा है न्यूट्रिशनिस्ट बनने का, वो बेसिकली फूड साइंसेस में या बीए न्यूट्रिशन करा हुआ है किसी स्टूडेंट ने, और उसके बाद उन्होंने वो एंट्रेंस क्लियर करके आगे मास्टर्स किया है, और उसके बाद देन दे हैव क्लियर्ड नेट एंड देन दे हैव गॉन प्रोफेसर और न्यूट्रिशनिस्ट. या थैंक यू. और एक 2 क्वेश्चंस बचे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीए इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. जी. इसके ऊपर शाह सुलेमान पूछ रहे हैं, कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट इट?
BA in travel and tourism is quite an interesting stream which is coming up. काफी यूनिवर्सिटीज इस पे कोर्सेज प्रोवाइड कराती हैं. अगर आप ये कर रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड आपको एक लैंग्वेज भी लर्न कर लीजिए साथ ही साथ. फॉर एग्जांपल अगर आपको इंडिया में टूरिज्म इंडस्ट्री में एंटर करना है, so then you can easily learn Japanese, Spanish, French, German, all these, any of the languages, which will give you an upper hand, and then you can easily become a translator, uh, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में. एंड उसके अलावा बहुत सारी आजकल many people have started traveling themselves, so not necessarily उन्होंने travel and tourism पढ़ाई करी है, और but then because they have love for travel तो वो travel करके उन्होंने अपने blogs शुरू कर दिए हैं. तो आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में एक नीश फाइंड करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट एरिया डिसेबिलिटी से रिलेटेड है, तो मेरा हमेशा से रहता है कि हम एक एक्सेसिबल टूरिज्म की बात करें. सो एक्सेसिबल टूरिज्म में जहाँ पे डिसेबल्ड एंड एल्डरलीज एंड प्रेग्नेंट वुमेन और women with young children can easily travel and do not have to stay back because of certain restrictions. So this is one of the upcoming field which government is also now these days focusing on. I'm sure travel and tourism is a very big field, and obviously हमारा कुछ portion of the economy is dependent on travel and tourism. So you can definitely explore many things, and obviously it is also important to research that बाकी countries में for example यूरोप में हो गया या न्यूजीलैंड या all these countries में tourism में क्या क्या नई innovations है, क्या क्या नई inventions है. So you can obviously choose that career path as well. Okay, thank you, ma'am. Abhi last question from Farooq Siddiqui and Yashika Bajwat. I'm joining two questions actually. तो इसमें है कि is there any maximum age limit to enroll in journalism or social work for distance learning module, and is there an entrance exam for journalism? If yes, which one? No, there's no maximum age to learn, to do any qualification, I believe, because in my college, it's not a distance thing, but classroom learning. In my college, we had students who were 50 years old. So I'm sure there's no age to learn that. For distance also, obviously you can enroll anytime depending upon your job interest. अगर आपको कोई job लेनी है and then they have certain requirement for certain skills, so you can easily enroll yourself in courses and you can do it side by side with your job. Sorry, the second question was about journalism, right? So the second question is about journalism distance learning pay. What is the entrance exam for that, if there is any entrance exam? Okay. See, again, वही है कि आप एक तो डिस्टेंस कोर्सेज फॉर एग्जांपल इग्नू डेफिनेटली देती है, तो आपको उनकी वेबसाइट पे क्लियरली जाके पता लग जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज हर एक कोर्सेज एनरोल करने का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी आपको शॉर्ट टर्म डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करती है, 1 month 2 month. सो उन सब की रिक्वायरमेंट आई वुड सजेस्ट आप उनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर देखेंगे तो देन you'll have a more clarity rather than I'm giving you a specific answer and that might create a confusion. So the best is call the college, call the university, write to them or go to their website, because उनकी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट हमेशा अपडेटेड रहती है. जी. Okay, so with that, we have completed all the question and answer sessions. So, Smriti ma'am, thank you for all of the effort, बहुत सारा effort आपने डाला है presentation पे, और कितने questions आपने answer किए सबके, and may God bless you with a lot more knowledge. Or so really nice to find out about social science and the relationships among individuals and the societies,
और एकेडमिक के हिसाब से जो कुछ भी आपने शेयर किया है और डिफरेंट ब्रांचेस और डिविजन्स जो आपने दिखाए हैं हमको, और जो करियर बना सकते हैं हम, आई एम श्योर जो कुछ भी जो भी हमारे साथ अभी आज हैं, all of them have got enough understanding and knowledge about the social sciences and humanities as a subject, so that they will be very clear about their future and what they want to do going forward. So once again, I thank you for all your efforts, ma'am. And Thank you. also I thank everybody to be able to participate and make this such session a success. And now, Shehzad bhai, over to you. Okay, thank you so much, Fazail bhai, and thank you so much, Ms. Preeti, for this insightful session. I hope everyone who's present here will take benefit of it and will apply that in their own lives learning. And to all the participants, it was fantastic to have you all on board. AMP organizes a session from highly qualified professionals and experts in the particular field to share their learnings and viewpoints to guide not only the youths but everyone. So we request you all to keep joining these sessions, which will help you in choosing the right career, which will help you succeed in your career. Also, share these with your friends and family and ask them to join these sessions as well. So now we are going to end this session with a dua. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يسر لنا أمورنا كلها مع راحتي لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you everyone. Tomorrow again we'll have a career guidance seminar, same time 3 p.m. So request you all to please join this session on time. We'll be ending this session for now. Thank you. Thank you for your wonderful time, Ms. Smriti. Thank you so much. Thank you so much for making me part of this. Thank you, Ms. Smriti. Bye bye. Take care. Bye.